खुशी तो इस केस च डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन केड़ी होएगी? वो क्यों? वो इस करके बेटा क्योंकि अगेन आ दो टर्म्स का सम है। तो पहली टर्म टाइम वाली ने तो इंक्रीज करना वा क्योंकि टाइम की नेचर है इंक्रीज करना। तो दो टर्म्स का सम कांस्टेंट क्यों होएगा, कदों होएगा? ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ x ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। तो 네ਗੇਟਿਵ x एक्सिस और ਇੱਥੇ बेटा ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ टी ਮਾਈਨਸ kx ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ डिफरेंस वाला। सो जो फेज है किसी भी वेव का फेज वो कांस्टेंट होंदा तो आप उस फेज ਨੂੰ ऑब्जर्व करके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दस सकते हैं। अच्छा एक गल होर ध्यान रखनी है क्योंकि आप इस डेरिवेशन ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਆ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੇਵ ਅਲੋਂਗ x ਐਕਸਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਲੋਂਗ z ਐਕਸਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ z ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ z ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆ ਫਿਰ z ਐਕਸਿਸ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ है ना। तो z होने ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 네ਗੇਟਿਵ z ਹੋਣ ਨਾਲ 네ਗੇਟਿਵ z तो ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। तो कहने का मतलब ये कि अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਵ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਓਮੇਗਾ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ x ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ k ਲੈਮਡਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। तो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਮੇਗਾ k ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। तो ਇਹਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਏਗੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ वेलोसिटी। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ पवनीत तू क्लास लगा रही है कि किसी की लगा रही है? अच्छा तो तेरा माइक ऑन है। चलो देखो पुत्र हम एक और गल ध्यान च रखनी है कन्फ्यूज नहीं होना क्योंकि वेव मोशन च ना थोड़ा जिहा कन्फ्यूजन होंदी है। कन्फ्यूजन क्यों होंदी है भी एक तो
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਟੈਂਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚੋਂ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੇਵ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਐਂਡ ਸੋ। तो इस करके मतलब नर्वस नहीं होना, क्लैरिटी रखनी है कि पार्टिकल वेलोसिटी का मतलब है कि वेव मोशन के कारण जेडे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं उन्हां पार्टिकल्स की वेलोसिटी वो कितना कटनी है पुत्र, तो वो आपां लिख दिता वीपी, वो होएगा dy बाय dt, क्योंकि y की है, y है ड्यूरिंग वेव मोशन किसी भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है। तो जिस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट y है उस पार्टिकल की वेलोसिटी है vp। तो जदों तुसी इहनू डिफरेंशिएट करोगे तो एंप्लीट्यूड कांस्टेंट है, इहनू कुछ नहीं कहना। जिहड़ा साइन है इन्हें डिफरेंशिएट होके बन जाना cos ओमेगा t माइनस kx इनटू ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦਾ ਓਮੇਗਾ t ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਆ ਜਾਣਾ। तो ड्यूरिंग वेव मोशन पुत्र जो पार्टिकल वेलोसिटी है तो वो की है वेरिएबल है, और ਉਹਦੀ मैक्सिमम वैल्यू कितनी ਹੁੰਦੀ है जितनी सिंपल हार्मोनिक मोशन च पार्टिकल दी ਹੁੰਦੀ है ओमेगा आर। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, आर एम्पलीट्यूड है। तो ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਚ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। वेव वेलोसिटी ਦੱਸਦੀ ਹੈ कि वेव ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਨਾਲ किस स्पीड ਦੇ ਨਾਲ कितनी वेलोसिटी ਦੇ ਨਾਲ एनर्जी ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ है, जबकि पार्टिकल वेलोसिटी का मतलब है कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट जिहड़ा वाइब्रेट कर रहा वो है। और गिवन मीडियम च बेटा नोट कर लेना कि वेव वेलोसिटी कांस्टेंट हुंदी है गिवन मीडियम च, बट पार्टिकल वेलोसिटी वाइब्रेटिंग पार्टिकल की वेलोसिटी वेरीएबल हुंदी है। सो ये पॉइंट याद रखना ना, स्टैप याद रखना। हुण जदों असीं गल करते हैं पार्टिकल एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन कितना लिखांगे, इस टर्म ਨੂੰ टाइम ਦੇ ਨਾਲ डिफरेंशिएट करांगे ਜਦੋਂ ਤਾਂ ओमेगा r बेटा कांस्टेंट ही है, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। cos ਨੂੰ डिफरेंशिएट करूंगे टाइम ਨਾਲ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਾ माइनस sin इनटू ओमेगा। ਹੁਣ ਆ माइनस और ओमेगा मल्टीप्लाई होके आ गए। तो ड्यूरिंग वेव मोशन मीडियम दे अलग अलग पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, और हर वाइब्रेटिंग पार्टिकल की वेलोसिटी ते एक्सेलरेशन फिक्स नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह हर पार्टिकल की वेलोसिटी मीन पोजीशन ते मैक्सिमम है, एक्सट्रीम ते जीरो है। हर पार्टिकल की एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन ते मैक्सिमम है, मीन पोजीशन ते जीरो है। तो ये रिजल्ट्स याद रखने हैं।
पर उस तो भी इंपॉर्टेंट गल मैं जी दसन लगा वा, ये तो हो गई कि जदों मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए है कि पार्टिकल जदों वाइब्रेट कर रहे हैं ड्यूरिंग वेव मोशन, तो पार्टिकल की वाइब्रेट करन दी वेलोसिटी ते वेव वेलोसिटी सेम नहीं है। वेव वेलोसिटी का मतलब है कि जिस रफ्तार के नाल एनर्जी अगे वध रही है, तो पार्टिकल वेलोसिटी का मतलब है कि जेडे वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है उन्हां दी वेलोसिटी कितनी है, किस टाइम पे कितनी है। तो दोनों का आपस च कोई डायरैक्ट कनैक्शन नहीं है। हुण बेटा नैक्सट जिहड़ा टॉपिक आपां इंपॉर्टेंट भी है वो की करना, देखो जिहड़ा AP है उन्होंने आपां dVp/dt भी लिख सकते हैं, या इदा भी लिख सकते हैं, इदा भी लिख सकते हैं, तो या d² y/dt² भी लिख सकते हैं। मतलब वेव मोशन के दौरान अगर y की वैल्यू आ है तो फिर dy/dt की वैल्यू आ है, ते d² y/dt² की वैल्यू आ है। तो इस गल को मैं इथे साइड ते लिखन लगा कि वेव मोशन के दौरान अगर y है r sin ω t - kx, तो dy/dt की वैल्यू है ओमेगा r cos ω t - kx, ते d²y/dt² की वैल्यू है आ वाली -ω² r sin। तो इन्हां स्टेप्स दे विच बेटा तुहानू किसी नू भी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो दसो। क्लियर है? भव्या क्लियर है? खुशी अच्छा। हुण देखो बेटा अगर y की वैल्यू आ है तो dy/dx कितना कटांगे आपां, तो ਉਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ टाइम की जगह पे x ਨਾਲ डिफरेंशिएट करांगे। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ डिफरेंशिएट करांगे r ਤਾਂ कांस्टेंट है, sin ਦਾ बन जाना cos इनटू ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਦੇ ਨਾਲ डिफरेंशिएट करना, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ डिफरेंशिएट करना, ਇਹਨੂੰ करना, तो डिफरेंशिएशन करनी है -kx की। तो मैं स्टेप एक ज्यादा करता r cos ω t - kx। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ डिफरेंशिएट करना -k कांस्टेंट बाहर ਕੱਢ लिया, x ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕੀਤਾ 1 हो गया। ਇਹਦਾ मतलब dy/dx की है -kr cos। अच्छा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ x ਦੇ ਨਾਲ डिफरेंशिएट करना, ਜਦੋਂ दोबारा करेंगे तो -kr को तो आ टर्म कांस्टेंट है, cos का बन जाना माइनस साइन है ना, जो माइनस बनेगा तो माइनस और आ माइनस प्लस हो जाना, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ। और आ माइनस के फिर इथे वापस आएगा, माइनस के और के मिलके -k² r sin ω t - kx इनटू 1, और आ इनटू 1 लिखने की लोड़ ही नहीं है ना। तो आ गया बेटा। हुन इथे अगर y की वैल्यू आ है तो d² y/dt² की वैल्यू आ है, d² y/dx² की वैल्यू आ है, तो ये तो डिफरेंशिएशन का रोल है। हुन आपां हेडिंग की लिखना, वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन का की कंसेप्ट है बेटा, तो आपां d²
डिवाइड करांगे तो आ वाली टर्म है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ते आ वाली टर्म का आंसर है माइनस के स्क्वायर आर हुण उत्तर साइन साइन कट्टे गए, आर आर कट्टे गए, माइनस माइनस कट्टिया गया, ओमेगा स्क्वायर ओवर के स्क्वायर। और थानू याद होएगा कि वेव वेलोसिटी हुंदी है ओमेगा बाय के, इना मतलब अगर आ स्क्वायर है तो आ भी स्क्वायर होएगा। सो इट मींस आ वाली जेडी टर्म है v स्क्वायर, बिकॉज v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के। तो हुन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर बन गया v स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर, सो आ बन गया। तो इसनों कहने हैं आपां वेव इक्वेशन। मतलब कोई भी इक्वेशन जेडी वेव मोशन नु रिप्रेजेंट करती है तो वो इस इक्वेशन नु सैटिस्फाई करेगी। तो इनू आपां जदों न्यूमेरिकल करांगे ना फिर उदों यूज करना सिखांगे, बट इनू नोट कर लेना, इनू टिप्स ते रख लेना। जे चाहते हैं कि वेव मोशन के बिहाफ ते न्यूमेरिकल्स होण तो ये इक्वेशन का पता होना जरूरी है। तो हुण बेटा जदों असीं गल करते हैं वेव मोशन की, तो वेव मोशन के दौरान जिहड़ी गल आपां हुण तक सीख चुके हैं है ना, वो मैथेमैटिकली ज़्यादा सी पर इंपॉर्टेंट सी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो भी। पर हुण जिहड़ी मैं गल तुहाडे नाल शेयर करन लगा वां वो है बेटा कि असीं लोग साउंड वेव बारे पढ़ चुके हैं, ठीक है। साउंड वेव बारे तुहानू मैं दसता वा कि इन्हां दे विच इंफ्रासोनिक वेव्स भी है, अल्ट्रासोनिक वेव्स भी है ते ऑडिबल वेव्स भी, और वो सारी रेंज आपां लिख लई सी। फिर आपां प्रोपोगेशन ऑफ साउंड आइसोथर्मल प्रोसैस है कि एडियाबैटिक, वो आपां दस चुके हैं कि एडियाबैटिक है। न्यूटन ने उन्होंने आइसोथर्मल मन्निया सी बट एक्सपैरीमेंटल रिजल्ट्स मैच ना करन करके तो वो अजम्पशन डिस्कार्ड कर दी गई और उहदी जगह पे फिर लैप्लेसे ने करैक्शन की सी, है ना। वो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल सी जिहड़ा तुहानू गया सी भी याद कर लईओ। हुण बेटा जदों असीं गल करते हैं साउंड वेव्स की, तो हुण गल नूं सुणो पुत्तर। हुण शायद जदों तुसीं किसी आवाज़ नूं सुनदे आ, एक तां वो आवाज़ जिहड़ी है उहनूं आपां अगर आम लेमैन की भाषा च कहीए उच्ची नीवीं, उच्ची आवाज़ नीवीं आवाज़, है ना। जदों आपां कहने हैं वॉल्यूम वधा दिओ वॉल्यूम घटा दिओ, तो वॉल्यूम वधाण नाल आवाज़ उच्ची हो गई। उच्ची का मतलब उहदी इंटेंसिटी वध गई। जदों आपां कहने हैं कि वॉल्यूम घटा दिओ आवाज़ नीवीं हो गई, मतलब इंटेंसिटी घट गई, इंटेंसिटी, है ना। तो अगर मान लो तुसी सड़क के किनारे खड़े हैं, है ना, साइड ते खड़े हैं बच के, ट्रैफिक आ जा रहा, तो अगर मान लो कोई गड्डी हॉर्न करती हुई तुहाडे वाल आ रही है, तो तुसी सड़क के किनारे उहदी आवाज़ नूं महसूस करोगे तो तुसी देखोगे कि जदों वो गड्डी तुहाडे नेड़े आएगी तो अगर वो लगातार हॉर्न करती आ रही है, जिद्दां मान लो भी वो एंबूलेंस है या फायर ब्रिगेड की गड्डी है, तो जदों तुहाडे नेड़े आएगी तो नेड़े आन ते तुहानूं उहदी आवाज़ उच्ची हो गई लगेगी, है ना। मतलब तुहानूं उहदी इंटेंसिटी उच्ची हो गई महसूस होएगी। तो जदों तुहानूं क्रॉस करके चला जाएगी तो इंटेंसिटी नीवीं हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। तो एक तो है पुत इंटेंसिटी का कंसैप्ट, पर दूजी गल जिहड़ी है
ਉਹ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਚ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਚ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਚ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਮੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਇਨ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਵॉइस ਹੈ ਨਾ, ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰਿਲਨੈਸ, ਘੱਟ, ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਲੋ ਪਿਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਸ਼੍ਰਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿੱਖੀ, ਹਾਈ ਪਿਚ, ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੱਛਰ ਹੈ ਨਾ ਭਿਨਭਿਨਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੱਛਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸੀ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ। ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਬਰੀਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੋਟੀ ਪਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰੀਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਂ ਪਿਚ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਤਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਿਚ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਿਚ ਲੋ ਹੋਏਗੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲੋ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ, ਬਾਲਟੀ, ਖਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੋਲ ਦਿਓ ਟੂਟੀ, ਬਾਲਟੀ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਲਟੀ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਲਟੀ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਲਟੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼੍ਰਿਲ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਲਟੀ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਘਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰਿਲਨੈਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਲਟੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਟੂਟੀ ਖੋਲੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਲਟੀ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਆ ਇਹ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨੋਟ? ਪਵਨੀਤ,